مولانا محمود مدنی کے خلاف بدتمیزی کا طوفان اٹھ کھڑا ہو چکا ہے۔ ہر طرف سے مولانا محمود مدنی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیڈروں نے مولانا محمود مدنی کے خلاف بدتمیزی کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر بھی مولانا محمود مدنی کے بیان پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولانا محمود مدنی کو جہاد پر بیان دینے کی ضرورت کیا تھی۔ دوسری طرف مولانا محمود مدنی نے ایک مرتبہ پھر صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور کسی بھی حال میں اپنے بیان کو واپس لینے والے نہیں ہیں۔ اس کی کوئی وضاحت وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے پچھلے دنوں بھوپال میں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں صاف لفظوں میں ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ اب ہسٹوریکل سینٹنس بن چکا ہے، تاریخی جملہ، کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، جہاد ظلم کو روکنے کے لیے ہے۔ مولانا محمود مدنی نے جیسے یہ بیان دیا، میڈیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لگاتار مولانا محمود مدنی پر میڈیا نے الزام لگایا کہ انہوں نے جہاد بھڑکانے کا کام کیا ہے، وہ دیش میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، وہ دیش کے ہندوؤں کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں۔ بہار کے گورنر عارف محمد خان نے باضابطہ پریس کانفرنس کر دیا۔ عارف محمد خان گورنر ہیں اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی گورنر کبھی پریس کانفرنس کرے اور کسی عالم دین یا کسی مسلم تنظیم کو ٹارگٹ کرے، سرکار کے ایجنڈا کو اور موقف کو سپورٹ کرے۔ لیکن عارف محمد خان صاحب بی جے پی کے پرانے لیڈر ہیں، اس وجہ سے ان کو گورنر بنایا گیا۔ چنانچہ انہوں نے تمام پروٹوکول کو توڑتے ہوئے صحافیوں کو بلایا، پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ جہاد کے بارے میں کہا وہ صحیح ہے اور دیوبند میں یہی پڑھایا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ دیوبند میں اصل جہاد کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ جہاد کا مطلب دہشت گردی نہیں، جہاد کا مطلب قتل و غارت گیری نہیں، یا جہاد کا مطلب بے گناہوں کا خون بہانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی اسلامی تاریخ ہے۔ جب صحابہ کرام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے ظلم ڈھانا شروع کیا، ان کو ستانا شروع کیا، ان کو ایمان لانے کی وجہ سے مارا گیا، صحابہ کرام کی موب لنچنگ کی گئی، تب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کا حکم دیا، اور اسی دن سے ہمیشہ ظلم کے خلاف جہاد ہوتا رہا۔ اسی تاریخی جملے کا یا اسی واقعے کی طرف مولانا محمود مدنی نے اشارہ کیا کہ جب جب ظلم ہوتا ہے تب تب جہاد ہوتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے یہ بھی کہا اپنی اسپیچ میں کہ ہندوستان میں جہاد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں امیر المؤمنین نہیں ہے، یہاں شرعی قانون نہیں ہے، لیکن جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے جہاد کو جس طرح بدنام کیا جاتا ہے اس کا کاؤنٹر بھی کیا۔ کوئی آ کے لو جہاد بولتا ہے، کوئی تھوک جہاد بولتا ہے، کوئی یو پی ایس سی جہاد بولتا ہے، یعنی ہر معاملے میں جہاد کو جوڑا جاتا ہے۔ مسلمان اگر تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہے تو اس کو ایجوکیشن جہاد کو کہہ رہا ہے۔ مسلمان اگر کالج اور یونیورسٹی قائم کر رہا ہے تو اس کو ایجوکیشن جہاد کہہ دیا جاتا ہے۔ مسلمان اگر میڈیا کے میدان میں کام کر رہا ہے تو اس کو میڈیا جہاد کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اتنے لوگ دن رات جب جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، جہاد جیسے مقدس لفظ کو یہ دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، اس کا جواب مولانا محمود مدنی نے دیا کہ جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ تمام کام جو گھٹیا ہے، جو غلط ہے، ان کے ساتھ جب جہاد کے لفظ کو جوڑا جاتا ہے تو اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ کیا کچھ مولانا نے کہا تھا، پہلے ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے۔ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا۔ اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں، وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر
नजर अंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला। ये औकाफ किसी बादशाह या हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, इनमें से अक्सर आम मुसलमानों की वक्फ करदा है। हलाल के तसव्वुर को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम किया जा रहा है। घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है। बिल्डोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। मौलाना महमूद मदनी की मुकम्मल स्पीच मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। गोदी मीडिया में एक एक क्लिप को काट कर दिखाया जा रहा है और पूरी स्पीच नहीं सुनाई जा रही है। हमने मुकम्मल स्पीच वहां अपलोड की है, उसे ज़रूर सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे पहले कमेंट में उसका लिंक भी मौजूद है। अब मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ बीजेपी के एक लीडर या कह लीजिए उनके स्पोक पर्सन और MP संबित पात्रा ने भी पहले ही दिन एक बाज़ाब्ता वीडियो जारी करके उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, उसको भी सुन लीजिए। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। I firmly believe that the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today. संबित पात्रा अकेले शख्स नहीं है। टीवी चैनलों पर पिछले 4 दिनों से लगातार इसी पर लड़ाई हो रही है, रोज़ाना डिबेट चल रही है, मौलाना महमूद मदनी को टारगेट किया जा रहा है। इस बीच मौलाना महमूद मदनी का इंटरव्यू किया है NDTV ने, और NDTV ने मौलाना महमूद मदनी पर दबाव बनाने की कोशिश की, पूरा प्रेशर बनाया। मौलाना महमूद मदनी अपने बयान को वापस ले ले या वो एक्सप्लेन करे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन NDTV की एंकर मोहतरमा को मौलाना महमूद मदनी ने कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं और 100% हूं, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकती। NDTV की एंकर मोहतरमा ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मौलाना के साथ इंटरव्यू के दौरान बदतमीजी की, मौलाना को मजबूर किया वंदे मातरम पढ़ने पर, और मौलाना ने साफ लफ्जों में कहा, मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें जो करना है करो।
नहीं, मैं यही पूछ रही हूँ, यानी कि मुसलमान बार को बार वंदे कहूंगा। मातरम नहीं बोलना है। जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को पढ़ने का शौक हो पढ़ ले, मुझे भी जरूरत होगी मैं भी पढ़ लूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी। वो कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम पढ़िए, देशभक्ति का सबूत पेश कीजिए। मौलाना कह रहे हैं कि वंदे मातरम किसी से जबरदस्ती नहीं कहलवाया जा सकता। कोई अपनी मर्जी से पढ़ रहा है पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे जबरदस्ती करे, मेरे ऊपर दबाव बनाए कि तुम वंदे मातरम बोलो पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब एंकर की तरफ से बार बार यही सवाल किया गया, बदतमीजी की गई, मौलाना ने एंकर को जबरदस्त जवाब दिया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और माइक उतार कर फेंक दिया और कहा तुम अपना इंटरव्यू जारी रखो, मैं तुम्हारे शो में नहीं बैठ सकता। और मौलाना महमूद मदनी ने यहाँ पर जो कुछ किया ये सही जवाब था। और वो तमाम लोग जो टीवी चैनलों पर जाते हैं उनके साथ बदतमीजी होती है, उनको कुछ भी बोलने पर मजबूर किया जाता है। एंकर और जो एंकराइन होती हैं वो अपना एजेंडा, सरकार का एजेंडा स्पीकर के, पैनलिस्ट के, स्पोकपर्सन के मुंह में डालने की कोशिश करती है। तो ऐसे एंकरों के पास यही तरीका इख्तियार करना चाहिए, माइक निकाल कर सीधे फेंक देना चाहिए। और मौलाना महमूद मदनी ने काम किया। मदनी जी, अगर आप इस पर कोई कुछ बोलेंगे नहीं तो उसी तरह का आक्रोश बना रहेगा, उससे क्या हल होगा? मौलाना महमूद मदनी के बयान पर आखिर हंगामा क्यों बरपा है? मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और यकीनी तौर पर जिहाद जुल्म के ही खिलाफ होता है। जिहाद का माना मेहनत भी है, जिहाद का मतलब मुशक्क़त भी है, जिहाद का मतलब नफ्स के खिलाफ जंग भी लड़ना है, लेकिन इसी के साथ जिहाद का मतलब जंग भी है। और जिहाद उमूमन दिफा के लिए हुआ है कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, मुसलमानों ने जिहाद किया जुल्म को रोकने के लिए, जालिमों को सजा देने के लिए। और मौलाना महमूद मदनी ने बयान जमीयत के इजलास में दिया और एक मैसेज दिया कि जुल्म नहीं होना चाहिए, अगर जुल्म होता है तो जिहाद होता है। मौलाना महमूद मदनी के इस बयान का हरगिज़ मकसद नहीं है, ना उनका कहीं भी इशारा है कि वो हिंदुस्तान में जिहाद करना चाहते हैं, क्योंकि जिहाद वही होता है जहाँ एक मुसलमान अमीरुल मोमिनीन होता है, जहाँ मुसलमानों की हुकूमत होती है। इंडिया में जिहाद का इस वक्त कोई मतलब नहीं। मौलाना महमूद मदनी ने इसकी भी वजाहत कर दी है, इसके बावजूद उनको कंटिन्यू निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल मौलाना महमूद मदनी ने पहली मर्तबा हिम्मत के साथ बात की है, जुर्रत के साथ बातचीत की है और हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने बात की है। वंदे मातरम को लेकर जिस तरह उन्होंने बयान दिया कि जो मुर्दा कौमें होती है वही वंदे मातरम बोलती है, आखिर क्यों किसी मुसलमान को वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर किया जाएगा? क्यों किसी मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाएगा? और मौलाना महमूद मदनी ने एक वाज़ेह इशारा दे दिया कि मुसलमान हैं, मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है। अगर हमारे ऊपर जुल्म होगा, अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि हम इस जुल्म को रोकने की कोशिश करेंगे। मौलाना महमूद मदनी के बयान को सीरियस लेना चाहिए हुकूमत को, यहाँ के तमाम लोगों को, कि आखिर क्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, क्या मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, क्या मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, क्या मुसलमानों को लगातार दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और अगर मुसलमानों के साथ ऐसा है तो इसको ख़त्म करना चाहिए। मुसलमानों को भी बराबर का शहरी समझना चाहिए, मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए। और मौलाना महमूद मदनी ने यही मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से। जहाँ तक आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया देवबंद पर, जमीयत उलमा हिंद पर, तो सच्चाई ये है, तारीख़ ये है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत को ग़ुलाम बना लिया, यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाया, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमा लिया और भारतीयों की हुकूमत हिंदुस्तान पर नहीं थी, उस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग जमीयत उलमा हिंद लड़ रही थी। उलमाए दीन ने, उलमाए हक़ ने ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी किया था और फिर उलमा ने जिहाद किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की। और एक दिन ऐसा आया जब अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, देश आज़ाद हुआ। जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको उर्दू और हिंदी में मुजाहिदे आज़ादी कहा जाता है। हमारे देश में आर्मी का कोई जवान अगर मर जाता है तो उसको शहीद कहा जाता है। शहादत ये अरबी लफ्ज़ है। मुजाहिदीन जो है वो जिहाद से बना है, जो जिहाद करने वाला होता है उसी को मुजाहिद कहा जाता है। तो एक तरफ जो फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने आज़ादी की जंग की, उनको हम मुजाहिद कहते हैं और मुजाहिद जिहाद से बना है। अब जिहाद का इतना अहम मतलब, जिहाद इतना अहम तरीन लफ्ज़, लेकिन उस जिहाद के लिए
घटिया इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है, उस जहाद के लफ्ज़ को गलत कामों से जोड़ा जाता है। इन सब का काउंटर किया मौलाना महमूद मदनी ने, कहा कि जो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं उनके लिए जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, जो लोग तालीम के मैदान में काम करते हैं उनके लिए जहाद का इस्तेमाल नहीं होगा, जो एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं उनके लिए जहाद का इस्तेमाल नहीं होगा, जो दहशतगर्दी करते हैं, खून खराबा करते हैं, बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, वहाँ या उन सब के लिए जहाद का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि जहाद मुक़द्दस कामों के लिए होता है। और जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कोई हथियार उठाता है, कोई जुल्म को रोकने की कोशिश करता है, तो उसको जिहाद कहा जाएगा। ये मौलाना महमूद मदनी ने अपनी स्पीच में एक्सप्लेन किया, साफ लफ्ज़ों में बताया। उसके बावजूद मीडिया की तरफ से कंटिन्यू मौलाना महमूद मदनी को निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी के हौसले को सलाम करना होगा, उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी कि वो अपने बयान पर कायम हैं, मजबूती के साथ इस मौक़िफ़ को वो अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि उनके इस जुमला के कहने का मतलब क्या है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, फिर मुलाकात होगी।